हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 नवंबर का न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट न्यूज़. सम ऑफ द न्यूज़ आर कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वी हैव डन yesterday. Some are the new news, especially about the collegium system. So we are going to see that also. Again we are going to discuss about the Moscow format talk. क्या होता है ये, कल भी हमने डिस्कस किया था, आज भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे. And then some new news about G20 and COP27, which we are doing from past few days. So let's start with the first news that SC agrees to list plea for collegium system review. अब ये collegium system क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि collegium system is a system of the Supreme Court for the appointment of Supreme Court judges. Such system also exists in High Court, but that is recommendatory in nature. The appointments in High Court is also decided by the Supreme Court Collegium, consisting of Chief Justice of India and two senior most judges. Now, collegium system जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसे मेंशन नहीं है. ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्टिकल 124 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 124 में है दैट द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया after such consultation with such judges of Supreme Court and High Court as he may deem necessary. That is about Article 124 about the appointment of Supreme Court judges. But उसके बाद क्या हुआ कि there are three cases which finally led to the establishment of present collegium system. So these three cases they are very easy to remember. They are first judges case 1982, second judges case 1993 which gave birth to collegium system, and third judges case 1998 which said that the collegium should consist of CJI and 4 senior most judges. That led to the establishment of collegium system. Now if you look in high court, तो high court में भी एक collegium system होता है. वहाँ पे chief justice of high court and 2 senior most judges of high court are the part of high court collegium, and they send the recommendation to the Supreme Court collegium on judicial appointment, and the final decision is taken by a Supreme Court collegium of CJI and 2 senior most judges. तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम स्ट्रेंथ है वो दो टाइप की होती है. अगर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होना है तो जो कॉलेजियम सिस्टम होगा उसमें CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे. ओके, 4 सीनियर मोस्ट जजेस. अगर हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है देन इट विल कंसिस्ट ऑफ CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस. ठीक है, फाइन. सो इसके बाद क्या हुआ कि 2014 में देयर वाज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन for the establishment of National Judicial Appointment Commission for the appointment of judges for Supreme Court and High Court. But in 2015, this amendment was declared null and void by the Supreme Court. Now, यहाँ पे जो बात होती है वो होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में, हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट में प्राइमेसी किसकी होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव की होनी चाहिए या जुडिशरी की होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो 3 जजेस केस है तो इसमें से जो फर्स्ट जजेस केस था दैट इज SP गुप्ता केस. तो फर्स्ट जजेस केस में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि नो, यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी होनी चाहिए. बट देन इन सेकेंड जजेस केस 1993 इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फर्स्ट जजेस केस के डिसीजन को ओवरटर्न किया और बाद में कहा कि नहीं, here the when president is consulting the chief justice of India, that consultation means concurrence. Okay, and then this second judge case is established the collegium system. Then came the third judge's case in 1998. इसने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो जब प्रेसिडेंट को अपना डिसीजन जो बताएंगे वो सिर्फ उनका डिसीजन नहीं होगा बट वो एक कॉलेजियम का होगा डिसीजन, जो कॉलेजियम में CJI होंगे प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे. ओके, सो दिस 3 केसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया. तो कॉलेजियम सिस्टम ऑफ इंडिया के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म क्या आता है कि दैट जजेस आर अपॉइंटिंग द जजेस. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट का तो कोई रोल है नहीं. ठीक है, क्योंकि सेकेंड जजेस केस में ही बोल दिया गया था कि जो CJI प्रेसिडेंट को जो नाम बताएंगे वही अपॉइंटमेंट्स होंगे. दैट इज कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस. ओके, सो दैट इज द थिंग. अब जो है इसमें इस
को बैलेंस करने के लिए, एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी देने के लिए 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था विच एस्टेब्लिश्ड एनजेएसी, बट देन अगेन इट वाज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड इन 2015। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है दैट वाई कॉलेजियम सिस्टम इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज it is a synonym for nepotism and favoritism. Now let's coming to the Mulle Periyar level up flood warning issued for Kerala. तो देखिए मुल्ले पेरियार डैम है, मुल्ले पेरियार डैम। तो मुल्ले पेरियार डैम के बारे में बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है, तो वो आज मैं क्लियर कर देता हूँ। मुल्ले पेरियार डैम जो लोकेशन है वो है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट इन केरला। इट इज इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट इन केरला, ठीक है। दो रिवर हैं, उनके कॉन्फ्लुएंस पे ये डैम बना है। दैट टू रिवर इज मुल्ला एंड पेरियार, दैट्स व्हाई द नेम इज मुल्ला पेरियार डैम। बट ये जो डैम को कंट्रोल कौन करता है, ठीक है ना। सो द कंट्रोलिंग पावर इज इन द हैंड ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। स्पेशली द मदुरई रीजन ऑफ तमिलनाडु विच इज द रेन शैडो रीजन, वहाँ पे इरिगेशन के लिए इसका पानी यूज किया जाता है। The next is Supreme Court has decided that what should be the maximum permissible level in Mulle Periyar Dam considering the structural safety, then it is 142 feet. उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मुल्ले पेरियार डैम जो है वहाँ पे तमिलनाडु wants that the level of water should be increased, it should be more than 142 feet, but Kerala wants that no, the water level should be below that considering the safety of the dam. Now coming to India can be a sizable player in electronics according to a minister. So the 25th edition of Bangalore Technology Summit was being held. So यहाँ पे देखिए हमारे लिए जो important point है वो ये है that India Semiconductor Mission, it is a specialized business division within the Digital India Corporation. This is very important. उसके बाद जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, इट एम्स टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री in the country, okay, and it aims for setting up of fabrications and chip manufacturing facility in the country. Then some of the targets, so if you will just see, it is expected to cross $300 billion by 2025-26. Now from editorial we have this important trade tumult. So अगर आप देखेंगे कि the world is going through recessionary fears, the export demand of Indian goods have shrank. So our exports has recorded for September 2022, if you will just see that it has slipped below $30 billion since February 2021. Now sectors which have been hit hard is engineering goods, pharmaceuticals and chemicals, employment intensive gems and jewelry, textiles and handlooms. Only 6 sectors have seen an uptick like electronic goods, okay, and अगर हम import देखेंगे so it has grown by 5.7% year on year and the trade deficit is over 50% to $26.9 billion. Now if you will just see that this is the 4th straight month of $25 billion plus trade deficit, कि हमारा जो trade deficit है it is more than $25 billion. So this number is very important. अच्छा, अगर हम इस पूरे साल की बात करें तो इंडिया की ट्रेड डेफिसिट कितनी है, $175 बिलियन। तो ये जो $25 बिलियन है ये तो मंथ का आ रहा है, बट ओवरऑल इस साल का ट्रेड डेफिसिट जो है दैट इज $175 बिलियन। नाउ सम ऑफ द रीजन फॉर दिस इज वेरी हाई एनर्जी प्राइसेस बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। नाउ वन लाइनर टाइप ऑफ न्यूज दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू होल्ड ऑफ साइट ऑन अंडमान एज इट प्रिपेयर्स फॉर G20 प्रेसिडेंसी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 दिसंबर से जो G20 का प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के हाथ में आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। और नेक्स्ट इंडिया के बाद कौन बनेगा G20 का प्रेसिडेंट, दैट इज ब्राज़ील। और इंडिया के पहले अभी कौन है, इंडोनेशिया, ओके। सो दिस इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील दे आर कॉल्ड एज ट्रॉयका, ठीक है ना। ट्रॉयका का मतलब हो गया पास्ट प्रेसिडेंट, प्रेजेंट प्रेसिडेंट एंड फ्यूचर प्रेसिडेंट। So here India is going to hold off-site for 30 to 40 diplomats at Taj Exotica Hotel at Havelock Island from November 25 to 27 in Andaman. तो यहाँ पे G20 शेरपा अमिताभ कांत होंगे। साउथ शेरपा, देखिए ये पहली बार आ रहा है नाम, तो प्लीज नोट इट डाउन। साउथ शेरपा अभय ठाकुर एंड G20 नेशनल कोऑर्डिनेटर एंड फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला। So they will be giving presentation of G20 summit to be held in India. उसके बाद if you will just see that the ambassadors of Indonesia, Ina Krishnamurthy
एंड ब्राज़ील के जो एम्बेसडर हैं एंड्रे एलेना कॉर्डेलागो, दे विल ऑल्सो बी present over here because they are part of the G20 Troika. Now, what is the idea of this meeting? So, the meeting on the Andaman, it will prepare the way for the schedule of G20 technical and ministerial meetings over the next 10 months leading up to G20 summit in September 2023 in Delhi. उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका थीम क्या होगा, G20 18 G20 summit which will be held in India, it will be Vasudhaiv Kutumbakam. इसके बाद अगर आप देखेंगे सो इंडिया इज गोइंग टू हेल्ड नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस फ्रॉम नवंबर 18 to 19 इन इंडिया. ओके, नाउ यहाँ पे जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल है दिनकर गुप्ता, ही हैज सेड दैट इंडिया हैज एविडेंस ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म which are terrorists are using social media platform for crowd funding to fund the terror activities. Okay, अब यहाँ पे देखेंगे ये जो कॉन्फ्रेंस है here 78 countries will be represented, but Pakistan and Afghanistan they are not attending the event. Okay, and confirmation from China is awaiting. Now the next is Moscow format talk. So the Moscow format of consultation on Afghanistan, it was held in Russian capital Moscow on Wednesday, and it aimed to call for respect for all Afghan ethnic groups and minorities to create national reconciliation in war-torn country. उसके बाद यहाँ पे जो joint statement issue हुआ, it also called upon ending all terrorist infrastructure in Afghanistan and placing of military infrastructure facilities of third countries in Afghanistan. ओके, एलिमिनेट करने के लिए कि भाई थर्ड कंट्री का भी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं होना चाहिए. तो ये जो मॉस्को फॉर्मेट है इसमें देखिए कौन कौन से कंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सीधा SCO से जोड़ के देखिए. रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, काजाख्स्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान. इसमें से तुर्कमेनिस्तान जो है वो SCO का मेंबर नहीं है, बट यहाँ पे वो मॉस्को फॉर्मेट टॉक का मेंबर. द नेक्स्ट इज एट COP27 इंडिया अपोजेस ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑन एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे इंडिया ने अपोज किया है डेवलप्ड वर्ल्ड का एक एफर्ट टू एक्सटेंड द स्कोप ऑफ मिटिगेशन टू एग्रीकल्चर. ओके, सो यहाँ पे इंडिया हैज अपोज दिस मिटिगेशन इन एग्रीकल्चर. ओके, साइटिंग दैट जो रिच कंट्रीज है दे डू नॉट वांट टू चेंज देयर लाइफस्टाइल एंड दे आर सर्चिंग फॉर द चीपर सॉल्यूशंस इन अदर कंट्रीज व्हिच मे डैमेज द फूड सिक्योरिटी एजेंडा ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. द नेक्स्ट इज in a first 6 women army officers clear the staff course. So again this is also important that 6 women army officers they have cleared the defense service staff course and defense services technical staff course exam which is held annually in September. The next, Nancy Pelosi to step down after Democrats lose House majority. So we knew that US has just gone through a midterm election. ठीक है, so midterm election जो हुआ इसमें जो US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज लोअर हाउस, यहाँ पे अब रिपब्लिकन पार्टी का मेजॉरिटी हो गया है. सो स्पीकर भी इन्हीं पार्टी का होगा. ओके, सो द डेमोक्रेट स्पीकर नैंसी पेलोसी नाउ शी इज गिविंग अप हर पोस्ट. ओके, नाउ who will be the US House of Representative Speaker? So Republican leader Kevin McCarthy. So Kevin McCarthy, okay, he will be the US House of Representative Speaker. The next is US hikes taxes, cuts spending as recession looms. तो we already knew कि यूनाइटेड किंगडम में ऋषि सुनाक जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो इसके पहले लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर थी और उनके जो चांसलर थे ट्रेजरी के क्वासी क्वारटेंग, ही प्रपोज्ड a scrapping of 45% rate, okay, of tax. So then Liz Truss, her government fall and Rishi Sunak became the prime minister. तो इनके जो चांसलर हैं जेरेमी हंट, उन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया दैट इज कॉल्ड एज ऑटम स्टेटमेंट. दिस ऑटम स्टेटमेंट इज नॉट डॉलर, पाउंड 55 बिलियन पाउंड कंसोलिडेशन पैकेज ऑफ टैक्स हाइक एंड स्पेंडिंग कट्स. ओके, तो अब अगर आप देखेंगे तो इसमें पैकेज के प्रपोजल्स में क्या क्या है, तो देखिए दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, टैक्स हाइक एंड स्पेंडिंग कट्स. तो स्पेंडिंग कट्स कितना है 30 बिलियन पाउंड और टैक्स इंक्रीज कितना है 25 बिलियन पाउंड. उसके बाद जो हाईएस्ट रेट ऑफ पर्सनल इनकम है ऑफ 45%, ओके, दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 1,50,000 पाउंड टू 1,25,000 पाउंड. तो जो क्वासी क्वारटेंग थे, ठीक है ना, उन्होंने पूरा ये 45% को हटाने की बात की थी.
और ये जो गैप है इसको कैसे फंड करेंगे वो उस पेपर में था नहीं. But here they have not gone down by scrapping the 45%. They have just reduced it from 1,50,000 pound to 1,25,000 pound. The next is that there is 9.7% increase in national living wage to 10.42 pound per hour and pension increase in line with inflation. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक टर्म है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड शैडो चांसलर. तो यूके में एक कॉन्सेप्ट चलता है दैट इज कॉल्ड शैडो कैबिनेट. ओके, शैडो कैबिनेट. अभी भाई शैडो कैबिनेट क्या होता है? शैडो कैबिनेट इट कंसिस्ट ऑफ अपोजिशन पार्टीज. जो अपोजिशन एमपीज होते हैं ना, ठीक है ना, वो उनका एक अपना शैडो कैबिनेट होता है. शैडो कैबिनेट का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि कंजर्वेटिव पार्टी इज रूलिंग, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी इज रूलिंग नाउ एंड लेबर पार्टी इज इन अपोजिशन. ठीक, तो अब कंजर्वेटिव पार्टी के चांसलर कौन है? जेरेमी हंट. तो अब लेबर पार्टी से भी एक मेंबर ऐसा होगा जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो चांसलर हैं, ठीक है ना, उनके प्रपोजल्स को पूरा वो स्टडी करेगा. ठीक है ना, कि अगर आगे चल के अगर लेबर पार्टी का गवर्नमेंट बनता है तो दैट पर्सन विल बी चांसलर. मतलब ही इज अ स्पेशलाइज्ड पर्सन, ओके, acting like a shadow minister, that shadow to a minister of conservative party. So that is called a shadow cabinet. It consists of all opposition. तो जो shadow chancellor है exactly ये chancellor नहीं है, but he is the one who will be looking, who will be studying all the policy proposals of conservative party chancellor. तो ये labour party के Rachel Reeves, he is the shadow chancellor. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.